receive the जी So बोलिए। somehow education is linked to To career. choose So to we want choose a better option and career. Sajid sir, exactly, this is Lubna ma'am. Now being To recorded. choose a better option Okay. and career. Thank you. Okay. This is Lubna and ma'am from just STF someday School, we are Minto not Circle. available. But Hello. the present scenario, the export. Hello. I think the students are very much जी बोलिए। confused. So they must be provided some guidance so that they can choose the right career. Sir, Okay. career Okay. counseling helps Okay. individuals But to there's a herd take decisions about their career there is a path. herd mentality of following engineering and following NEET on a level of peer pressure or from the parents also. So in order to know what are the different career Okay. options available, it will be better for the students so they can choose. They don't have just Okay. two Okay. careers Different as barriers and all this. engineering, Okay. as medicine, but they can have a knowledge of other careers also, especially those which are available in our university. Sure. Sure. Sure, ma'am. Sure. Assalamu Who alaikum, are sir. you, ma'am? Sir, I am Sir, to जी know मैम बोलिए। Sadia Khatun Zaidi from Sayyid Hamid Senior Secondary. Yes, Assalamu alaikum. Assalamu Right. alaikum, Sajid sir. जी यस मैम। यस मैम। जी मैं कहती हूँ कि career counseling is important to help individuals to make effective decisions regarding their career. I think Okay. it. Okay. Yes. Okay. 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 So yes, sir, first, to so know the I, different I choices. am Assalamu I am alaikum, sir. Sadia Nasir. I'm Sadia Nasir from Sayyid Hamid Senior Secondary School, boys. And so, if the students are given access to various career options, not only in their own area but outside, so they can take better decision, and they cannot be confused. Usually, they get confused because of different pressures on them. They can easily avail this access, and they can make correct decision. Sir okay. Zainab Okay, Fatima. from Sayyid Hamid Senior Secondary School. Sadia, The very right. You want to see me. career counseling helps the student to identify their strengths, their positives, their negatives, and then choose a career so that they can excel in that. Okay. Okay. Okay, ma'am. So any other opinion? Assalamu alaikum, sir. Sir, This is important- Aisha, ma'am. Sir, it provides accurate and updated information about various career options. This is Aisha Khan from ABK's High School Girls. Right, ma'am. Right, ma'am. I fully Assalamu agree with you. alaikum, Thank sir. you. Assalamu alaikum, sir. I am Tahmina Ashraf from ABU City Girls High School. City Sir, Girls High School, sir. सर हम बच्चों को करियर काउंसलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि सर जितने भी कोर्सेज हैं मतलब जो पॉपुलर हैं सपोज कीजिए सर हमारा इंजीनियरिंग है मेडिकल है इस टाइप की जो चीजें हैं सर बच्चे उससे तो अवेयर होते हैं लेकिन सर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या करें आगे जा करके 10th करने की बात क्या करें या 12th करने के बाद क्या करें सर बच्चे उस चीज से अवेयर नहीं होते हैं तो इस वजह से सर करियर काउंसलिंग करना एट द लेवल ऑफ क्लास 8, 9, 10 सर उनके बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम उन्हें बता सके कि खाली आपका सिर्फ एक इंजीनियरिंग लाइन ही नहीं है सिर्फ एक मेडिकल लाइन नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं सर इसलिए जरूरी है करियर काउंसलिंग Sir, I would like to say कि it's not only an career counseling. it is also a type of support that is to be provided from the side of the counselor to the student. Okay. Okay. That help them to make a better decision in their future because at the age of adolescence they are unable to take any type of decision so they by telling them by the help of counseling by pros and cons of and different types of careers that will enable them to opt better option and better decision in their career that will help them counseling with the help of counseling. Mohammed Mansoor from STS School Minto Circle, sir. Basically, there are so many reasons the teachers are given that they may take, with the help of us, they may take a better decision for their career. What I believe is like the student sees teachers or their admirers they see them that they may give them a better direction to their career. So
they are looking for the advice, or they are looking from the suggestion from the teachers, because they suppose that teachers give you a better direction with relevance to your parents also. So I believe that they. Yes, sir. He is right. Okay, ma'am. Assalamu alaikum, sir. I am Ataul Islam from AMU Girls School. The career counseling is crucial for students because it provides personal guidance and help the student for your future careers. Okay. So to Okay, choose ma'am. the Now, all of you, better mute path, yourself. so All to of choose you, the mute better yourself. path which gives them satisfaction and success. Please mute yourself. See, I just asked whether counseling is important or not. All of you are teachers, so all of you gave a positive and favorable opinion that somehow counseling is important. Why it is important? You have given so many reasons. Now my second question, please listen to it and give your opinion. Do you think that teacher is important in the process of counseling, or only a counselor is supposed to do counseling? Teacher No, is sir. also Teacher is important. very important. Play a crucial Yes, role in teacher counseling. plays Very very important. I'm important role. Sadia from RNPS. Play a Sir, very teacher is important role. also important. Teachers are important, right? The Teacher are more Teacher is important. important because teacher knows the student very well. That's it. Since Assalamu every alaikum, teacher sir. has I am Mr. Parveen from AMU Girls School. So, sir, teacher helps the students to develop essential skills, how to face challenges, etc. right. Sir, I'm Sadia from RNPS, and I teach English I want there. to add that And I think so that is all English teachers only. used to do counseling when uh, they start the poem Road Not Taken by Robert Frost, because we have to just tell them about choices, and we usually do those things. जितने भी लोग हैं जो रोड में टेकिन लेते होंगे, उसको पढ़ाते होंगे, वो ज़रूर काउंसलिंग्स जो है उस वक्त में बच्चों की ज़रूर करते हैं, क्योंकि चॉइसेस जो है वो मैटर करती हैं उनकी, और वही जो कन्फ्यूजन, जो डायलेमा है, उसी को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें उस वक्त में बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करते हैं सर। और मैं समझती हूँ कि सारे ही टीचर्स जो हैं जब वो पोम पढ़ाते हैं तो वो ज़रूर उन स्टेप्स को भी बच्चों को बताते हैं कि हमें कैसे अपनी चॉइसेस को लेना है, करियर को कैसे लेना है, कैसे कैसे हम लोग की साइट्स खुल जाती हैं, और हमारी चॉइसेस कैसे हमें जो है आगे जाके मतलब डिफरेंशिएट करेंगी चीज़ों से। Sure. So there is one more thing which I want to add, that the teacher is the only one who is in our schools, especially in AMU schools, who will be working as a counselor, who will be helping the students to know his deficiencies or know his positive points and power points. And because there is no specified counselor for this in the schools. In other government schools, we know that there is a particular counselor where secondary and senior secondary students, they are in communication with the counselor. But here in our schools, it is us, we have to play the role of the counselor for them. ठीक है, got it. So two things are clear. Counseling is important, and second one, that it is not solely the duty of the counselor, rather somehow we, the teachers, are also supposed to guide our students, particularly the confusions that is there in choice of the career and all those. Now let me give you one data. Both are important, sir, I think. Right. So let me give you one data. I think it will further authenticate my opinion. So I exactly remember when I passed class 12. So long back in 1992. So definitely 33 years back. So at that time, total number of options in terms of courses which were available to us, including engineering and medical, was 73. I mean 73 courses. All these courses were diploma, certificate courses, degree courses, engineering, medical courses, polytechnic, I mean all those things. So including all, there were 73 options before us, which we can choose after passing class 12. Now today, I mean in 2025, so 33 years back, so more than 2000 courses which are available before the students after passing class 12. So how many courses I have told you? कितने हैं अभी हमारे पास ऑप्शंस? बताइए, कितना मैंने बताया? Sir, 73, you told 73. 73 in my time. Now it is more than 2000. More than 2000. More than 73. Right.
So do More you than. think it is possible for the student to choose one particular course out of 2000 courses without the assistance of either parents or teachers or counselor? I don't think so. What's your opinion? No, sir, not at all. Yes, No, sir. Not at all. it's not possible. So this point further authenticates my It's opinion required. that definitely counseling is required. Now, if you can see my slide, some points I have mentioned on this slide. So if you see the opening line, career counseling is a professional intervention which is conducted either one-to-one or in a small group. So I mean, both the ways are possible. Sometimes some particular student is approaching to you, got confused or want to take your opinion. So by that way, you can do that. So it might be one-to-one, or even if the group of students, for example, 4, 5, or 10, or something like that. I mean, in that situation also you can guide. So it is focused on how the individuals manage their journey through life, learning, and work. I mean, both the situations, we require certain kind of counseling. It's not only related to learning related materials. I mean, sometimes working situations, sometimes so many issues related to our life. I mean, all these things are there. But I'm more concerned about career counseling. So what we are required to do in career counseling, in fact. So first one, you can see the point: career exploration, making career choices, managing career changes, lifelong career development, and dealing with other career related issues. I think these are the 5 crucial points which should be presented before the students so that he or she may take a decision. So coming to the first point, career exploration. So what do you mean by that? The choices offered, sir. Looking in all the options that are available. To check possibilities. Sir, career Possibilities, exploration options. is the process of researching different career options. To Okay. choose and explore whichever career one wants to have. This is Lubna ma'am from Minto Circle. Sure. Now let me give you another data. I mean, all these are authentic data that I'm giving before you people. So today's top jobs. Can you name some of the top jobs of today? Kuch top Software jobs? engineer. TED Talk. Yes, software engineer and ICT based jobs. Okay. CA job, chartered accountant. Okay. Sir, IT managers. Sir, data scientists, Data scientist. और कुछ? cloud architect, sir. Okay, cloud architect. और बताइए? Meteorologists. Investment banking. YouTuber. Very good. YouTuber. So please mute yourself. Now, so many careers you have told me, like web developer, IT manager, data. सिक्योरिटी का एक्सपर्ट जो होते हैं आजकल वो सबसे ज्यादा है तो जी। साइबर सिक्योरिटी So do you think all these careers existed 25 years back? No, sir. नो सर No, sir. No, sir. Not at all. So when you were in the school or I was in the school, definitely all these top careers of today, they didn't exist 25 years back. So definitely, I mean, we have not been taught about those careers. लेकिन हम एक टीचर हैं तो हमें उनके बारे में जाहिर सी बात है कि जानना चाहिए. बहुत मास्टरी के लेवल तक ना जाने तो एटलीस्ट मोटी बातें जाने या कम से कम उस एरिया से जुड़े हुए लोगों को हम जाने so that we may refer if there is any need. So what I wanted to say कि every career has its own strengths and limitations. Particularly अगर आप ये मैनेजमेंट वगैरह की बात करें, MBA से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो IT सॉफ्टवेयर है या प्रोफेशनल्स हैं, तो इनकी पूरे प्रोफेशन की एक खास जो है वो यूटिलिटी होती है. अगर ये ज्यादा देर बैठ जाते हैं डिग्री लेने के बाद खाली, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अकोमोडेटेड इन द मार्केट. या जो IT प्रोफेशनल्स वगैरह खासतौर से होते हैं, आप देखिए तो वो लिखना कम पसंद करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स थ्रू प्रोग्राम्स, और जो है वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir.
Right. Yes, Moment sir. to Yes, do sir. Yes, so. sir. So this, Definitely, I sir. want to add, Yes, sir. I want to add something into it, sir. एक मिनट म्यूट करिए अपने आप को, जब मैं कहूंगा तब आप बोलिएगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो लेट मी टेल यू अनदर very interesting story, and that will substantiate my point, that's what I want to say. So there's one big group that is known as Cognizant. नाम सुने हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes. sir. It's an IT company. It's an IT क्या है? company. बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, and it has headquarters in Hyderabad, and one office of there is there in Noida. बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, and every year it recruits I think lakhs of engineers, और अपने मुल्क में भी उनसे काम करवाते हैं, बाहर भी भेजते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है. So in the year 2018 I was in Hyderabad, and these Cognizant people were recruiting some software professionals. तो कहीं से उनको मेरे बारे में पता लगा, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया कि आप भी आ जाइए इंटरव्यू में. तो मैंने उनसे कहा कि देखो साहब, ये मेरा एरिया नहीं है, बेसिकली एजुकेशन का कुछ होता मामला, टीचर्स का होता तो मैं कर लेता. उन्होंने कहा नहीं सर आप आइए, हम किसी न किसी एजुकेशनिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को या सोशियोलॉजिस्ट को अपने इंटरव्यूज में जरूर बुलाते हैं, तो आप बस आ जाइए, आप हमारे पूरे प्रोसेस को देखिए और बताइए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो दैट्स व्हाई वी आर इनवाइटिंग. तो मैं गया वहां पर. सो डेफिनेटली सिंस इट वाज नॉट माय एरिया, और बस मैं सिर्फ देख रहा था कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और कितनी संजीदगी के साथ लोग इंटरव्यू देने आते हैं. एंड नीडलेस टू से द बॉयज एंड गर्ल्स दे वर वेरी हैंडसम, दे वर वेरी स्मार्ट, सब यंग थे, अच्छे कपड़े पहन के आए थे, अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे. तो आई मीन इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो अब चूंकि इंटरव्यू में मैं था, तो मेरी जिम्मेदारियों में से था कि मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछूं. तो अब मैं क्या पूछता, तो मैं सिर्फ इतना पूछता था कि फ्रॉम वेयर यू हैव बीन ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड, व्हाट डिग्री यू हैव अटेन्ड, and what do you want to do, your previous experience, or why you want to join this company, or what's your philosophy of life. इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं सबसे पूछता था. तो एक्चुअली जहां पर इंटरव्यू चल रहा था वहीं पर एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था. तो मैंने सबको इंस्ट्रक्ट किया, सारे लोगों को जो भी इंटरव्यू देने आते थे, मैंने इनसे कहा कि आप कम से कम अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है उसको बोर्ड पे जरूर लिखिए. तो जस्ट आई वांटेड टू नो वेदर दीस पीपल कैन राइट और नॉट, बिकॉज दे ऑल आर आईटी प्रोफेशनल्स. और फिर उसमें लोगों ने लिखा, और बहुत ही हॉरिबल राइटिंग में लिखा. मतलब कुछ की राइटिंग तो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती थी, और कुछ की जो आती भी थी तो बहुत अच्छी राइटिंग किसी की नहीं थी. तो आई थिंक आफ्टर इंटरव्यूइंग 10 to 15 पीपल, वन हैंडसम पर्सन केम. बहुत यंग था लड़का, 23-24 ईयर्स की एज का रहा हो. तो उससे मैंने पूछा यही क्वेश्चन की व्हाट्स योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो वो मैंने कहा कि यू राइट इट ऑन द बोर्ड. तो वो बोर्ड पे गया और उसने लिखा माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और नीचे लिखा कि आई लाइक DCRS. आप लोग सुन पाए क्या मैंने बोला? क्या लाइक किया बच्चे ने? DCRS. तो इसके बाद फिर मैं रुक गया यहाँ पर, और फिर दूसरे लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया. तो आई वाज कंफ्यूज कि ये DCRS क्या है. मतलब ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू ऑफ दैट बॉय मेरा दिमाग यही चलता रहा, DCRS क्या है, DCRS क्या है. आई कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या. तो फाइनली व्हेन इंटरव्यू वाज ओवर एंड ही वाज अबाउट टू लीव, तब मैंने उसको इंटरव्यू करके मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम ये लिखे हो इस पे आई लाइक DCRS. सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस DCRS. तो उसने कहा सर सिंपल, दाल चावल रोटी सब्जी. माय फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर जो मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इकबाल सर, लुबना मैम, अफरोज मैम, महबूब साहब, गुफरान भाई, दिस सीनियर पीपल, और जो मेरे साथ के भी हैं. तो अब ये बताइए कि ये लैंग्वेज आप समझ पाएंगे बच्चों की? इज इट पॉसिबल एवरी टाइम? No, sir. No, sir, not at all. तो अब देखिए कि मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू जो आपसे कहना चाह रहा था, तो डेफिनेटली आप अपने टीचर्स के सामने या आप अपने बड़ों के सामने या इवन इन इंटरव्यू डेफिनेटली सच टाइप ऑफ शॉर्टकट यू विल नॉट यूज. आप जाहिर बात है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. इवन एप्लीकेशंस भी जो आजकल के बच्चे लिखते हैं, तो वो
जो उनकी मैसेज की लैंग्वेज होती है उसी में लिखते हैं। तो आई मीन टाइम हैज मच चेंज ऑफ टाइम के साथ साथ करियर के ऑप्शंस भी काफी चेंज हो रहे हैं। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू से बिफोर यू पीपल, चूंकि फ्रीक्वेंटली मैं इंटरव्यूज में जाता हूँ 6ठी क्लास के 9वीं क्लास के, यानी वो बच्चे जो सेलेक्ट होकर के आपके पास आते हैं और आप जिनको पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके इंटरव्यू में जाते हैं। तो वहाँ उन यंग बच्चों से जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैं जरूर ये पूछता हूँ उनसे कि व्हाट्स योर करियर ऑप्शन, व्हाट्स योर करियर चॉइस, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि शुरू के सालों में लाइक 2015, 16, 17 अप टू 18 ये जो इंटरव्यूज मैंने लिया अप टू 19, तो उसमें कुछ टीचर बताते थे, कुछ साइंटिस्ट बताते थे, कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताते थे, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बताते थे। लेकिन 2020 के बाद से जो अब सिनेरियो चेंज हुआ है, तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि आई वांट टू बिकम यूट्यूबर। तो बहुत यंग है बच्चा, 6ठी क्लास में है, तो उससे मैंने पूछा कि बेटा यूट्यूबर बनना चाहते हो, वाई? तो वो बता रहे थे इसमें सर ग्लैमर है, पैसा है, और बहुत सारे लोग मुझे लाइक करते हैं, और मैं बहुत जल्दी जो है दुनिया में पॉपुलर हो जाऊंगा। आई मीन सो मेनी थिंग्स। तो you know, such type of things, such type of courses, such type of career choices were not there 25 years back. So much water has flown in Ganges during these 25 years. तो अब क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं करियर के हवाले से कि I don't think that these young boys and girls will be able to take a decision without the intervention of either parents or teachers or some learned persons from the society. तो क्यों ये करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? बिकॉज ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन, बिकॉज ऑफ मेकिंग राइट चॉइस, और समटाइम्स करियर चेंजेस के भी कुछ हालात ऐसे आते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल दैट आई वांट टू गिव टू यू, ये ओला और उबर तो सुना ही होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको कोरोना टाइम में ले चलता हूँ 2020 में। So Bangalore and Hyderabad, particularly I'm giving this example of these two cities. Of course, अब आगे दूसरे शहरों में भी हो सकता है ऐसा, बट ये दोनों को मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ही क्लोजली, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट बिफोर यू। तो बेंगलोर में मुझे एक ओला का लड़का मिला, यानी ही वाज ड्राइविंग द कार, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोला था, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत अच्छी, और 2-4 बातें ऐसी कही जो बहुत ही टेक्निकल थी। तो यानी जिस जगह से मुझे जाना था एक जगह से दूसरी जगह, तो जब व्हेन आई वाज अबाउट टू रीच ऑन दैट प्लेस, तो उससे 1-2 मिनट पहले मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो? तो उसने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा हाँ, मुझे लगा, क्योंकि जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, जिस तरह से तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, तो ऐसे तो ड्राइवर्स नहीं बोलते। ओके, सो हु वाज यू बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोफेशन? तो उसने कहा सर मैं IT प्रोफेशनल था और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना टाइम में जो है वो कुछ स्टाफ की जो है वो कमी की गई, तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम। तो अब चूंकि मैं एक बहुत रिमोट एरिया से आया हूँ, बिहार के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, और बहुत ही छोटी जगह है वहाँ पर, और मैं 10-12 सालों से बैंगलोर में था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो ओवर देयर और वहाँ पर कुछ अपना कर पाना। तो मैंने सोचा कि जब तक ये रिसेशन का टाइम ओवर ना हो जाए, तो सिंस आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं कार अच्छी चलाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ इस ओला और उबर से अपने आप को जोड़ लूं। मेरे पास कार थी और मैंने उनसे कांटेक्ट करके और इस तरह से ये किया कि जब तक रिसेशन ये खत्म हो जाएगा, और आई एम क्वाइट श्योर कि सूनर और लेटर माय कंपनी विल कॉल मी, और फिर उसके बाद मैं जाकर के वहां पे जॉइन करूंगा। तो एट दिस जुंक्चर ऑफ टाइम सिटिंग एमलेसली या बिल्कुल फालतू बैठने से बहुत बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो काम करूं। सो दिस एग्जांपल समहाउ आई मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन टुडेज सिनेरियो, जबकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो कुछ जो करियर्स हैं उसमें बूम बहुत तेज है, बट ऑल ऑफ ए सडन रिसेशन आल्सो कम्स। तो जब रिसेशन आता है तो फिर हमारे सामने करियर चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो आई थिंक दिस इज आल्सो वन रीजन व्हाई करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट बिसाइड्स करियर एक्सप्लोरेशन एंड करियर चॉइसेस। अब उसके बाद एक और ऑप्शन आता है लाइफ लॉन्ग करियर डेवलपमेंट का। कुछ करियर ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ जो है वो सीखना पड़ता है, एंड आई थिंक टीचिंग इज वन ऑफ देम, इजंट इट माय फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, exactly. Yes, sir. Yes, sir. तो टीचिंग के अलावा कोई और करियर, जी टीचिंग के अलावा कोई करियर और बता Yes, sir. सकते हैं? Advocate. Medicine, IT, Advocate has to study all the time, sir. जी medicine, IT, Doctors.
Doctors. Sir, advocates. Right. तो Computer engineer. IT personnel. Got it. So besides teaching, there are so many other careers जहाँ पर की lifelong learning की जरूरत होती है. I mean, you are required to develop yourself professionally. Professional development की जरूरत होती है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि वाई करियर काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट. यानी गोया कि जब हम करियर की चॉइस करें तो उसमें से एक पॉइंट हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो करियर मैं चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें करियर डेवलपमेंट के फर्दर कितने चांसेस हैं. And there are some other related issues of career like promotion and parks and facilities and social recognition and value in the society. I mean such type of things. तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो कोई करियर को चूज करते हैं. अब सवाल ये आता है, इससे अगर आप मेरी जो स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड दिख रही है मेरी आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So as I mentioned that this particular, please mute yourself. As I mentioned that this particular slide was made particularly for the medical students. लेकिन इसका रेलेवेंस जो है बाकी हमारे स्कूल उसमें भी है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो वाई करियर काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट. तो एक तो बहुत बड़ा इशू जो होता है वो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन का होता है. हमारे मुल्क में अभी भी एक भेड़ चाल है. आप देखें कि ज्यादातर लोग एक ही तरफ जाते हैं. जैसे कि शुरू में मैम ने बताया कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मेडिसिन को या ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंजीनियरिंग को. तो इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. लेकिन अब या तो बच्चों को जानकारी नहीं होती है या एक भेड़चाल जो है, ग्रुप प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, जिसकी वजह से सारे लोग एक ही तरफ चल देते हैं. एंड इवन इन इंजीनियरिंग, अगर हम इंजीनियरिंग की भी बात करें तो इंजीनियरिंग में कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पर लोगों की कमी है. मतलब वी रिक्वायर मोर पीपल बट वी डोंट हैव दैट नंबर ऑफ पीपल. आप इंजीनियरिंग की किसी ऐसे ब्रांच का एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर रिक्वायर्ड लोग कम है और वैकेंसीज ज्यादा है या पोजीशन ज्यादा है और लोग कम है? आप सोच के बताइए कोई ऐसा एरिया इंजीनियरिंग का. Sir, petrochemical. AI पेट्रोकेमिकल, Aircraft engineer. अच्छा, और कुछ? Aircraft engineers. एयरक्राफ्ट इंजीनियर. सर, एविएशन. सभी ब्रांचों में अच्छे इंजीनियर की कमी है जी. सभी ब्रांचों में अच्छे इंजीनियर की कमी है. दैट्स वेरी क्लेवर आंसर. और किसी को कुछ कहना है? आप लोगों ने मेट्रो इंजीनियरिंग सुना है? मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सुने हैं नाम? यस सर. Yes, sir. जी. अब कभी आप फुर्सत से, जब मेरा लेक्चर ओवर हो जाएगा तो आप जरा गूगल पे डाल के देखिएगा कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एरिया में स्पेशलाइजेशन देते हैं. देयर आर वेरी फ्यू. और अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे मुल्क में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन हर कॉस्मोपॉलिटन शहर में और हर मेट्रोपॉलिटन शहर में मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. तो जितने मेट्रो इंजीनियर्स की हमको जरूरत है उतने हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. यानी उतने तो क्या, मतलब ऑलमोस्ट हाफ भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. एंड समहाउ दोज इंजीनियर्स आर बारोड फ्रॉम sometimes other countries or sometimes from other multinational companies or something like that. तो ये एक ऐसा, यानी गोया कि विवादित जो है या कंट्रोवर्शियल इशू है कि दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, कि हम अपना फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या चूज करें. समटाइम्स वी आर ओवर सप्लाइड, समटाइम्स वी आर अंडर सप्लाइड. तो ये पॉइंट पहले वाले में कवर हो गया. आई मीन दैट्स व्हाई वी नीड दिस काउंसलिंग. उसके अलावा एक बहुत जो बड़ी कमी आ रही है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसके बारे में मैं काफी फिक्रमंद रहता हूं, कि अब अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आ रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं या आकर के छोड़ देते हैं. तो इट्स वेरी सीरियस चैलेंज एंड आई थिंक यू विल एग्री विथ मी. आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? Absolutely, yes. I do agree with you. Yes, sir. Agree with you. Totally agree, sir. अच्छा, अब ये बताइए मुझे सोच करके कि क्या अच्छे टीचर के बिना अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे डेटा साइंटिस्ट या टीचिंग सिर्फ एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे प्रोफेशंस को बनाता है सर. दैट्स इट. लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि आई थिंक 25 years लॉन्ग एक्सपीरियंसेस आई हैव, और मैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी जाता हूँ और जो इनका एडमिशन वगैरह होता है उस प्रोसेस से भी मैं काफी मेरा वालेहाना लगाव रहा है. तो
I mean, it's very frustrating. It's very disgusting, in fact. और बहुत मुझे frustration होता है कि साजिद सर, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको इजाजत हो तो। जी जी बोलिए। सर, अच्छे टीचर हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, उनकी कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि टीचर जब अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट भी अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हमको कभी कभी अच्छे लोग ना मिले, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं कि अच्छे टीचर नहीं होते। अच्छे टीचर हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे सर, उन्हीं की वजह से हमारा ये सारा सिस्टम चल रहा है। Sir, I'm sorry, sir. I want to say that sir, teacher must be by choice, not by chance, sir. By chance नहीं बनना चाहिए टीचर को, by choice बनना चाहिए। बहुत great profession है sir. या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि आई डिडंट से कि हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, लेकिन मेरी जो फिक्र है, डेफिनेटली अच्छे टीचर्स हर दौर में है, हमेशा है, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन मेरी फिक्र जो है वो ये कि अब जो अच्छे ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके चॉइस में अब टीचिंग बहुत नीचे है या नहीं है। तो दैट्स माय कंसर्न, इन फैक्ट। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से right sir. बहुत सारे फैक्टर्स हैं। Yes, you are right, sir. एग्जैक्ट सर, हम वो कॉमन इस प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स, और उसमें सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम देख रहे हैं आजकल कि टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, टीचर को वो चीजें नहीं मिली जो उसको चाहिए। टीचर के अंदर पोटेंशियल इतना है कि वो चाहे तो एक एक चीज बता दे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल ही नहीं हो रही है। बेसिकली इकोनॉमिक रीजन है, पेरेंट्स सिर्फ मनी माइंडेड हो गए और बच्चों को उसी तरफ गाइड कर रहे हैं। जी 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 जी। नहीं सर, एक चीज और भी है, कभी कभी तो टीचर्स को नॉन टीचिंग से भी मतलब क्या कहा जाए कि पूरा वो समझा जाता है, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो ऐसा लगता है आज के टाइम में। मैडम ने जो बात कही उसके बाद मैं कहूंगा until or unless टीचर इज ऑलवेज रेडी टू डिलीवर देयर बेस्ट, ऑलवेज, बिकॉज उसको मालूम है कि मैं अपने यहाँ हूँ तो आज मैं अपने बच्चों को कुछ दे के जाऊंगा, उसका मकसद ही ये होता है। Sure. I agree with you. But you know, somehow attracting caliber people to teaching profession, attracting good people to teaching profession, मुझे लगता है कि बहुत important है। और खासतौर से अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट देखें तो हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें कही हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की है। वी वांट टू मेक इंडिया विश्व गुरु, एंड आई डोंट थिंक वी विल बी विश्व गुरु विदाउट कॉम्पिटेंट टीचर्स। तो एक मेरा जो बहुत कंसर्न है, जो मेरी बहुत फिक्र है, तो वो मैंने आपके सामने रखी है। एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़े, अगर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें इस हवाले से जो है कि वो व्हाट आर दोस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट करियर काउंसलिंग। आप लोग मेरी स्लाइड को देख पा रहे हैं? Yes sir. Right. तो some of the factors I have mentioned. तो आप लोग क्या पढ़ पा रहे हैं उसको? 8 फैक्टर्स हैं, जरा सा पढ़िए। कोई आप में से कोई पढ़े? Parental expectations, focus on interest, current trends, new and offbeat careers, media influence, peer influence, lack of awareness of other career options, percentage of pupil in a particular specialization. Thank you. Who are you, ma'am? Iram Nizam from Sayyid Hamid. क्या पढ़ाती हैं मैम आप? Chemistry, sir. Chemistry, right. Thank you, Iram ma'am. Thank you, sir. Please mute yourself. So, I mean, there might be some other factors as well, लेकिन मेरे अपने तजुर्बात की बुनियाद पे मुझे लगता है कि ये 8 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो करियर काउंसलिंग को अफेक्ट करते हैं। So, needless to say, first factor very important, parental expectations, rather if I say parental over expectations, isn't it? Right, sir. Yes, sir. True, sir. बिल्कुल। और वो जो सारी बातें अभी आप लोगों ने कही कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे ऐसा करियर चूज करें जिसमें पैसा हो, जिसमें ग्लैमर हो, आई मीन ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आज के इस दौर में जब हम बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच गए हैं एंड वी आर प्लानिंग टू बी ए डेवलप्ड नेशन, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ हमारा पूरी दुनिया में हमारी हैसियत बहुत ऊपर गई है, बहुत बेहतर हुई है। स्टिल यू नो ये एक ऐसा एरिया है कि अभी भी पेरेंटल जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर के शेप में
एटलीस्ट हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज में डेफिनेटली, या लोअर या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में, कहीं ना कहीं से पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस प्ले वेरी क्रूशियल रोल। फिर उसके बाद दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और समटाइम्स इसमें क्लैश भी होता है। अगर आप देखें इसमें क्लैश भी होता है समटाइम्स। तो डू यू एग्री विथ मी कि समटाइम्स देयर इज अ क्लैश बिटवीन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस? Definitely. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Definitely. Yes, sir. Absolutely right. Yes, sir. And I think there is no need to elaborate. Just if you go through the film Three Idiots, तो उससे ये जो डिलेमा है अपने चॉइस का और पेरेंटल प्रेशर का, I think very beautifully it has been explained in the film Three Idiots, isn't it? It has been expressed. तो बच्चा जो है बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता था, उसके अंदर पोटेंशियल था, चाहता था बनना, लेकिन बहरहाल अब समाज में फोटोग्राफर की इतनी इज्जत शायद नहीं जितनी कि इंजीनियर की, तो माँ बाप ने बहुत प्रेशराइज करके बच्चे को भेजा। और एक बहुत जो दर्द है, जो तकलीफ है, इसको मेरे ख्याल से इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। बहरहाल लेकिन ये की सो फार एज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द करियर काउंसलिंग, उसमें पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के बाद दूसरा कोई अगर फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है तो दिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। करंट ट्रेंड्स, मॉडर्न ट्रेंड्स जो है वो क्या चल रहे हैं, ये अफेक्ट करता है। न्यू एंड ऑफ बीट करियर्स, मुझे लगता है कि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन द प्रोसेस ऑफ करियर काउंसलिंग। मीडिया का इन्फ्लुएंस आजकल बहुत ज्यादा है और हर फील्ड में, हर शोबे में है, तो दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टिंग करियर काउंसलिंग इश्यूज आल्सो। पीयर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, एंड पर्टिकुलरली आप लोग देख रहे होंगे या महसूस करते होंगे, बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमारे साथी लोग कोटा जा रहे हैं तो मैं भी कोटा जाऊंगा, या मेरे सारे साथी लोग जो है वो कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, या मेरे सारे साथी लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स HR में जाना चाहते हैं तो मैं भी HR में, समथिंग लाइक दैट। सो बिसाइड्स मीडिया इन्फ्लुएंस, पीयर इन्फ्लुएंस इज आल्सो देयर। समटाइम्स करियर के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इस वजह से रॉन्ग साइड में बच्चे चले जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी हो, इत्तलात की कमी हो, वी आर नॉट अपडेटेड। उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट जो है, इसके बारे में मैं आपसे ओपिनियन चाह रहा था, परसेंटेज ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, डू यू थिंक इट मैटर्स? Yes, it matters because visibility matters. Yes, sir. कुछ research matters. कुछ कंक्रीट वे में इसको एलेबोरेट कीजिए। Understanding also matters. This is Lubna Rubab from Minto Circle. Understanding of parents, they should understand the children, what they want to opt, what career they want to choose, and all that. This also matters. Especially, I want to add, Sajid sir, you must have seen that movie Tare Zameen Par. He did not understand his child, what he was going through, whatever he had. And definitely, and then he also wanted to choose. His interest was in painting and art, but because of his health issues, his parents did not understand. They expected a lot from him, and then finally they did not understand that child. This is what I wanted to add on for in your. I was giving a suggestion. Thank you. Thank you, sir. This is Lubna Rubab from Minto Circle. Yeah. Thank you, ma'am. You are very active. You are a very active participant. Thank you, ma'am. But I wanted to take the opinion on the last point particularly. Percentage of people in a particular specialty. Yes. So we need an appropriate number of the workforce because each sector has to be maintained so that the organization or an institution can work to its total potential on whole. Sir, Assalamualaikum. I think the percentage of people definitely matters because अगर किसी स्पेशलाइजेशन में कम लोग हैं, क्योंकि इंडिया में सब भेड़ चाल करते हैं, तो फिर ये होता है कि उन्हें देख के लगता है कि ये शायद उतना अच्छी चॉइस नहीं है हमारी कैरियर के लिए, जिसमें कम लोग हैं। ये भी हो सकता है, पेरेंट्स के माइंड में ही आता है। Assalamu alaikum, sir. This is Aisha Khan, ma'am. Sir, I would just say, sir, I want to add. Sir, I want to add,
it matters only to some extent because sir market demand और competition जब हम देखते हैं अगर too many people are entering the field of MBBS or engineering the competition becomes high and secondly sir jobs become harder to get तो sir ये depend करता है vary करता है sir. Okay. I think so sir. Student want to become doctor and engineer only. हम लोग 12th को पढ़ाते हैं ज्यादातर जिससे भी पूछो पेरेंट्स से या बच्चों से क्या बनना है हम नीट की तैयारी करेंगे हम जेई की करेंगे इससे थर्ड ऑप्शन तो कोई बोलता ही नहीं है सोचता ही नहीं they are wanting to fulfill the parents expectations, that is the thing rather than their own. This is Lubna ma'am from Minto Circle. Okay. Now please mute yourself and listen to me. अब ऑब्जर्वेशन में अपना आपके सामने रख रहा हूँ. All of you are learned people और काफी माशाल्लाह से समाज में एक्टिव है और आई एम क्वाइट श्योर कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप मेरी बात को समझ पाएंगे. जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ. Nowadays I'm just talking about the doctors. So definitely I'm not touching the other professions. जब particularly I'm concerned about the doctors. तो आप देखिए कि इस वक्त हमारे समाज में अच्छे भले सर्जन्स हैं, अच्छे भले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट बेशुमार हैं, पीडियाट्रिशियंस बेशुमार हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बेशुमार हैं एंड पर्टिकुलरली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड ऑल दोस. लेकिन जनरल फिजिशियंस मुझे लग रहा है कम हो रहे हैं. डू यू एग्री विथ मी? यस सर. डेफिनेटली सर. अच्छा क्या लगता है कि जनरल फिजिशियंस की जरूरत है कि नहीं है? नहीं जरूरत है. अपना इलाज खुद ही गूगल से कर लेते हैं ज्यादातर लोग. No ma'am, I don't agree with you. Everybody wants to go to the specialist. हाँ मे भी ये भी है. जो मशहूर डॉक्टर्स हैं उन्हीं के पास जाना चाहते हैं. जो 2-3 नाम है बस उन्हीं के पास जाना चाहते हैं. के पास जाना है. जनरल फिजिशियन के पास तो बहुत कम जाते हैं. नहीं लेकिन मैम वो जनरल फिजिशियंस एक्चुअली कम है ही और उनका होना मेरी समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपने टाइम में डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं थे. डेफिनेटली हर फील्ड में डॉक्टर्स की कमी थी लेकिन ये कि अगर रेशियो हम देखें तो ऑलमोस्ट जितने स्पेशलिस्ट थे वैसे उसी रेशियो में उससे थोड़ा मोड़ा कम या ज्यादा जनरल फिजिशियंस भी होते थे. लेकिन अब ये जो है वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर इफ यू सी तो वो कम हो रहे हैं. दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है परसेंटेज ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है द मोमेंट यू नो समवन इज चूजिंग करियर यानी करियर काउंसलिंग के प्रोसेस. अब इतनी सारी बातों के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर इंटरेक्शन विथ मी. आप लोगों ने मेरे काम को काफी आसान बना दिया and it shows that all of you are very good teachers in fact. Thank you very much. Now let's talk about the process. तो अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो जो जानकार हैं, जो माहिरीन हैं, जो स्पेशलाइज्ड पीपल हैं उनके नजदीक ये प्रोसेस कई सारी स्टेजेस में होता है. कुछ लोग 5 स्टेजेस बताते हैं, कुछ लोग 7 स्टेजेस बताते हैं, कुछ और बढ़ करके 9 स्टेजेस बताते हैं काउंसलिंग की. लेकिन मेरी समझ से ये 3 स्टेजेस दैट यू कैन सी जो 3 कंपोनेंट्स है इस प्रोसेस के आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर अस एज ए टीचर. क्योंकि हमको बहुत स्पेशलाइज्ड लेवल की काउंसलिंग बहुत गोया की गहरी काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती है. मोटी मोटी बातें हमको बताने की जरूरत होती है अपने स्टूडेंट को. तो इन माय ओपिनियन दीज 3 कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेट्स फोकस ऑन ऑल दिस. So you can see these 3 intake, assessment and counseling. आप लोग को दिख रही है स्लाइड? जी सर. Yes sir. So in a nutshell, let me explain first. Intake कहते हैं जिस स्टूडेंट की या जिस भी इंसान की आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातों को जानना, कुछ रॉ डेटा, कुछ रॉ इंफॉर्मेशन उससे लेना, उसके बाद उसका कुछ असेसमेंट करना किन्हीं बुनियाद पर एंड देन फाइनली प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग. गोया कि you will start with intake. I mean, you will take some data, some raw data from the student related to that student, related to his, you know, or her choice or interest or something like that. Then you will assess his or her potentials, and then finally, the counseling will begin. अब intake में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? There might be so many, but again, to make my job simple so that you people belong to diverse groups so that you may understand, I have just taken 4 points which are mentioned on the slide. चारों आपको दिख रही है? जी सर. Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या है? Take the personal details of the students, know the educational details of the students, be aware about parents' concern and expectation, know students' concern and expectations. That's it. तो पर्सनल डिटेल में आप लोग क्या क्या लेते हैं? यानी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग के हवाले से नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल में क्या क्या पूछते हैं आप? सर पेरेंट्स नेम, mother About the name, parents, address, siblings, economic background, कहाँ रहते हैं, किस जगह पे skills. Hobbies. Sir, a very important detail, his hobbies and his that has to be taken into mind. Personal Likes skills. and dislikes, sir. Okay. आमतौर पर जो हम पर्सनल डिटेल में लेते हैं, नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, whether father is working, whether mother is working, which profession they are doing, Daughter register भी made. हाँ, सोशियो इकोनॉमिक की स्टेटस है, कितने भाई बहन हैं, कहाँ पर रहते हैं, सच टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को करियर के लिए डायरेक्शन देने में या गाइडेंस देने में। और एजुकेशनल डिटेल्स, सब एजुकेशनल डिटेल्स में आ गई कि स्कूलिंग तुम्हारी कहाँ से हुई है। इन माय ओपिनियन स्कूलिंग मैटर्स, कहाँ से उसने 5वीं क्लास पढ़ा है, कहाँ से उसने 8वीं क्लास पढ़ा है, या अगर वो और बड़ा है, पर्टिकुलरली 12th के बाद का या 10th के बाद का है, तो उसने किस बोर्ड से 10th क्लास एग्जाम दिया है, 12th क्लास एग्जाम दिया है, क्या उसके मार्क्स रहे हैं, या क्या उसकी CGPA वगैरह रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी डिटेल्स भी हमारे पास होना चाहिए। देन कम्स बी अवेयर अबाउट पेरेंट्स कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बार बार मैं उस बात को कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देयर इज नो नीड टू रिपीट। लेकिन बहरहाल उनसे एक जबान में, एक सवाल में पूछ लेना कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, या आपको उसको डिसीजन लेने में हेल्प करने में आसानी रहेगी। एंड नो द स्टूडेंट्स कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है ये मोटी मोटी बुनियादी बातें आप जबानी अपने कान से भी सुन सकते हैं या कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। आई मीन इट्स अप टू। देन कम्स द असेसमेंट। अब असेसमेंट में अगेन आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी असेस्ड, लेकिन मेरी समझ से ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनका असेसमेंट एक काउंसलर को जरूर करना चाहिए, या हर उस टीचर को करना चाहिए जो किसी की काउंसलिंग कर रहा है। तो व्हाट आर दीज फैक्टर्स व्हिच आर देयर ऑन द स्लाइड? Intelligence, aptitude, and personality, sir. Intelligence, aptitude, and personality. Sure. अब आप सभी लोग टीचर्स हैं, यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ, what are the difference between intelligence and aptitude? Aptitude is your yearning and desire towards a particular subject or a concept or anything. Intelligence is your brain's capacity to understand, decipher, conclude, infer it in a broader concept. Okay. Any more supplement? Sir, intelligence is your overall brain power, whereas aptitude is your natural talent in that specific area. Who are you, miss? Sir, intelligence is how Sir, much this is knowledge Aisha you are Khan from gaining, ABK School Girls. and aptitude means that how you behave after getting that knowledge. Okay. और कोई opinion? Sir, Aptitude is Sir, particular merit and ability in any particular area or subject. Oh, Sir, very good. intelligence Very is good. more Very towards good. Very the good. Who are you, ma'am? cognitive domain, that how much Dr. Farhat he Parveen can from imbibe. ABK Girls. And aptitude is more, I think Farhat and ma'am's opinion aptitude is very much more close. application. Yes. Okay, please mute yourself. Please mute yourself. Assalamualaikum. So I Ability think, in a particular field. sure. Please mute yourself. Please mute yourself. I have taken enough opinion. I think Farhat ma'am's opinion is very much close. See, intelligence is the general capacity, aggregate capacity you can say. But aptitude is an specialized capacity. Got my point? My friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. Specific potential. Yes, sir. Right. So if you are intelligent, your IQ is high,
सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो भी आप काम करेंगे थोड़ा सा अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे बिकॉज ऑफ दैट IQ। यानी इंटेलिजेंस एक जनरल या एग्रीगेट कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, लेकिन एप्टीट्यूड जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल समवन हैज टीचिंग एप्टीट्यूड, someone has mechanical aptitude, someone has clerical aptitude, someone has musical aptitude, कुछ लोगों के अंदर स्पोर्ट्स का होता है। तो ये मतलब यानी किसी इंसान के अंदर एक हो सकता है, एक से भी ज्यादा हो सकता है, बट एप्टीट्यूड इज वेरी मच स्पेशलाइज्ड। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आई थिंक आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक इंसान की स्ट्रगल का, उसके एप्टीट्यूड का, उसकी सलाहियतों का, उसकी सोच का, उसकी दूरंदेशी का। सो व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, I used to prefer one cab that was known as Delta cab। आप लोग गूगल पे डालेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा। हैदराबाद की कुछ बड़ी कैब कंपनीज में से एक है डेल्टा कैब। सो उनकी सर्विसेज बहुत प्रॉम्प्ट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और उस टाइम में जबकि व्हाट्सएप वगैरह का चलन ज्यादा नहीं था तो फोन कॉल पे वो बुक कर देते थे, बिल्कुल टाइम से आते थे, टाइम से छोड़ते थे, और जितने पैसे की बुकिंग होती थी उतना ही पैसा लेते थे। आई मीन ड्राइवर्स उनके बहुत अच्छे, बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस है। तो आई यूज टू प्रेफर दैट डेल्टा कैब। कहीं भी मुझे हैदराबाद में कहीं भी जाना होता था, इवन अगर 200-250 किलोमीटर आसपास भी जाना होता था, तभी मैं आई यूज टू प्रेफर डेल्टा कैब। तो एक एयरपोर्ट मुझे जाना था, और ड्राइवर था, लड़का था, बहुत यंग था, बहुत ही हैंडसम लड़का था जो गाड़ी चला रहा था। तो थोड़ी सी बात हुई उससे मेरी, तो आई वांटेड टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस डेल्टा कैब, आई मीन हाउ दिस कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये कैसे इतनी अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, या कैसे बहुत कम दिनों में इन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली, समथिंग लाइक दैट। तो उस ड्राइवर ने जो नैरेटिव दिया, जो नरेशन दिया, वो नरेशन मैं आपके सामने रखता हूँ, डिक्टो बिल्कुल वैसे, एंड प्लीज लिसन टू मी। तो उसने कहा कि सर मैं डेल्टा से तकरीबन 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि व्हाई एंड हाउ डू यू वर्क। उसने कहा सर हमारे जो ओनर हैं बेसिकली उनकी एक स्कीम है 1250 by 1250। आप लोग मेरी बात सुने? यस सर। स्कीम? यस सर। क्या स्कीम थी? जी सर। 1250 by 1250। राइट। तो कहा कि जैसे मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, आई बिलोंग टू वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मैं हैदराबाद के पास एक देहात में, गांव में रहता था, रोजगार की तलाश में यहाँ पर आया। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप डेल्टा में चले जाओ। अब ये डेल्टा वाले लोग क्या करते हैं कि इटियास गाड़ी उस टाइम में, शायद जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 11 लाख 12 लाख के आसपास की आती थी। इटियास जो होंडा की गाड़ी होती है बहुत ही अच्छी होती है, खासतौर से हैदराबाद में टैक्सी में इसका काफी इस्तेमाल होता है। इसकी डिक्की काफी बड़ी होती है और बहुत मजबूत, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जल्दी पिकअप पकड़ती है, और इसका माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट ऑल द टैक्सी कंपनीज इन हैदराबाद प्रेफर इटियास। तो उस टाइम में 11-12 लाख की इटियास आती थी, और डेफिनेटली इफ आई वांट टू परचेज, मेरे पास पैसा नहीं है और बैंक वाले मुझे लोन नहीं देते हैं, तो मैं डेल्टा वालों के पास गया। डेल्टा वालों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे नाम से नई गाड़ी निकाल देते हैं और पूरी नई गाड़ी हम तुमको दे देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस दिन से तुम गाड़ी निकालोगे उस दिन से तुम 1250 रुपए हमको रोज पे करोगे। कितने दिनों तक? 1250 दिनों तक। सो व्हीकल इज योर्स। और तो जो तुम उस किसी का माइक खुला हुआ, प्लीज बंद कर लीजिए। समवन्स माइक इज ओपन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके सर। तो जिस दिन से तुम गाड़ी निकाले हो, हमने तुमको गाड़ी दे दिया, उस दिन से तुमको एवरी डे 1250 रुपए हमको देना है। यानी गाड़ी तुम्हारी है, डीजल तुम उसमें डलाओ, तुम रात दिन जितना चाहो गाड़ी को चलाओ। यानी हमने गाड़ी तुमको दे दिया, लेकिन ये गाड़ी तुम्हारी हमेशा के लिए तब होगी जब तुम 1250 दिनों तक मुस्तकिल हमको पे करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन तबीयत खराब हो गई, बारिश हो गई, कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, आगे पीछे करके 2 दिनों का 1 दिन दे देना, या 2-3 दिनों के बाद दे देना, या समथिंग लाइक दैट। तो
अब जरा आप लोग कैलकुलेशन करिए 1250 बाई 1250 कितना अमाउंट बना, कैलकुलेट कीजिए। 15 लाख से ऊपर बन गया। 15,62,500। जी जी, अच्छा, और 1250 को जरा साल में कन्वर्ट करिए, कितने साल बने? 3.5 साल। 3.5 साल। अब हाँ, अब उस लड़के ने मुझसे जो कहा, मैं उसका नैरेटिव आपके सामने रखता हूँ कि सर 2 साल मुझे हुआ है ज्वाइन किए और किसी भी दिन मेरा नागा नहीं गया है कि मैंने 1250 रुपए अपने उन साहब को दिया ना हो। तो अब 3.5 साल से 1.5 साल और बचा है तकरीबन, तो ये जब मैं पे कर दूंगा तो ये गाड़ी पूरे तरीके से मेरी हो जाएगी। और देखिए मैं बड़ी मेहनत से इस गाड़ी को चलाता हूँ, बहुत मेंटेन रखता हूँ, बहुत साफ सूफ रखता हूँ। और मैंने सर यहाँ इसकी आंध्रा गवर्नमेंट की एक स्कीम है लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए, सिंगल रूम के बैंगलो टाइप का कुछ ऐसा। तो मैं जब ये कार मेरी जब हो जाएगी, टैक्सी जब इसकी ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा और सर बिल्कुल आराम से 8 लाख 9 लाख रुपए की बिक जाएगी। और वो जो बैंगलो जो गवर्नमेंट मुझे अलॉट कर रही है वो 5 लाख कुछ रुपए की कर रही है। तो मैंने 2 बुक कर दिए हैं, एक अपने नाम से और एक अपनी जो है वो वाइफ के नाम से, और दोनों आसपास के बैंगलोज हैं। तो सर हम दोनों ले लेंगे, या तो हम दोनों में रहेंगे या हम एक में रहेंगे, एक को किराए पे उठा देंगे या हम एक अपने किसी रिलेटिव को दे देंगे। और मीनवाइल जो मैं इतना एनफ आराम से कमा लेता हूँ कि मेरे खर्चे वगैरह जो है वो बहुत आसानी से चलते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई कॉन्टेक्टेड टू दैट पर्सन, जो उसका ओनर था, इज क्वाइट बिजी पर्सन, डेफिनेटली बहुत मुश्किल था उससे अपॉइंटमेंट ले पाना। बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बस आपका 5 मिनट सिर्फ लूंगा, आप मुझे जरा टाइम दीजिए प्लीज। तो मैं गया, तो अब उस इंसान ने जो बात बताई, बड़ी मजेदार बात बताई, और ये आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए टीचर। तो कहा कि सर बेसिकली आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है और इट्स वेरी मच क्लोज टू हैदराबाद। तो औरंगाबाद से मैं यहाँ हैदराबाद में इंजीनियरिंग करने आया सर, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो बहुत स्ट्रगल रहा। मतलब मैं आई बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली, तो मेरे पास बहुत स्ट्रगल रहा, पर किस तरीके से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ 1-2 जॉब ज्वाइन किया सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और इंजीनियरिंग मेरी चॉइस में भी नहीं था। बहरहाल वो पेरेंटल प्रेशर वगैरह की वजह से मैंने कर लिया था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था, पैसे भी सही नहीं मिलते थे, बहुत मगजमारी का काम था। तो किसी तरीके से कुछ मेरे रिलेटिव जो गल्फ में रहते थे, तो उनसे मैंने पैसे लेकर के 2 कार खरीदी, एक कार खुद चलाना शुरू किया, एक के लिए ड्राइवर रखा, कुछ पैसे और आ गए, और फिर धीरे धीरे करके जो है वो मैंने जो है इसको धीरे धीरे करके अपनी फ्लीट को बढ़ाना शुरू किया। एंड सिंस आई स्ट्रगल्ड, I came from low socio-economic background, so I know how these people struggle. तो उनका स्ट्रगल मुझे याद था, तो मैं चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ आसानियां पैदा करूं, मैं खुद भी बिजनेस करूं, मैं खुद भी पैसा कमाऊं, मैं खुद भी मुनाफा कमाऊं, मैं खुद भी अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर जाऊं, पर साथ ही साथ मैं उन लोगों की भी मदद कर पाऊं those who belong to low socio-economic status. This is a very good example of aptitude कि अगर इंसान के अंदर एप्टीट्यूड होता है तो वो उसकी मदद से बहुत अच्छे काम कर सकता है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है हमारे सामने वही होता है कि जज कर पाना कि किसी भी स्टूडेंट में क्या एप्टीट्यूड होता है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी डिफिकल्टी फॉर यू। बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे सामने अवेलेबल हैं, पर्टिकुलरली देयर इज वन टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये तकरीबन 200-250 आइटम्स पर बेस्ड एक टेस्ट है, जिससे एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। और फिर उसके बाद फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम कर सकते हैं, यानी अगर जरूरत हो तो। अदरवाइज एप्टीट्यूड जो है वो दिखता है, आई मीन ड्राइंग का एप्टीट्यूड है, पेंटिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग का एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, तो ये एप्टीट्यूड किसी न किसी रूप में दिखता है, प्रोवाइडेड दैट कि यू आर ए माइन्यूट ऑब्जर्वर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को एसेस करके, एप्टीट्यूड को एसेस करके, उनकी पर्सनालिटी को एसेस करके, एंड अगेन पर्सनालिटी असेसमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मोटी मोटी बातें पर्सनालिटी के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि वो सबमिसिव है या एग्रेसिव है, या कूल माइंडेड है, या शार्ट टेम्पर्ड है, या टेंस है, रिलैक्स्ड है, स्ट्रेस्ड है। आई मीन ये मोटी मोटी बातें अगर आपको पता लग जाएंगी तो आई एम क्वाइट श्योर कि आफ्टर हैविंग द इनटेक एंड आफ्टर असेसिंग some of their intelligence, aptitude and personality, you will be able to show him or her the right way. अब इतना काम करने के बाद आपका काउंसलिंग का काम शुरू होता है। तो काउंसलिंग के काम के लिए मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं इस स्लाइड पे। आई एम क्वाइट श्योर यू कैन सी माई स्लाइड, सो इफ यू कैन सी माई स्लाइड, एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड द स्लाइड।
Let the students know themselves, SWOTA, I can pronounce as SWOTA. Let the students analyze themselves on the basis of 4 parameters: interest, aptitude, intelligence, and personality. Let them know their options: location of colleges, availability of colleges, admission process, alternate courses, allied courses, applicability, backup plan, restart. If plan A fails, then plan B. Let them know their resources, time, and money. Let them know the scope beyond salary, application, enhancing potentials. Thank you, sir. Thank you. Who are you, ma'am? Sir, this is Aisha Khan from ABK High School Girls. Okay, okay, Aisha ma'am. I'm so much grateful to you. बहुत एक्टिव हैं आप. Thank you, sir. Thank you, sir. अब बस इन्हीं 5 बातों को समझ लेते हैं और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद मैं अपने लेक्चर को ओवर करूंगा. So it is 1:06 by my watch. Hopefully 4 to 5 minutes more I'll be taking, and then I'll be opening the house for the question and answer. तो अभी तक जो आपके सामने बात हुई बहुत सिंपल वे में मैंने रखा कि बच्चे से कुछ इनटेक ले लिया, कुछ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन ले लिया उसके हवाले से, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और कुछ और मोटी मोटी बातें. और अगर कोई भी पॉसिबिलिटी या कोई भी गुंजाइश बनी तो एप्टीट्यूड का, इंटेलिजेंस का या पर्सनालिटी का टेस्ट कर लिया, असेसमेंट कर लिया, और असेसमेंट नहीं किया तो एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी एक नतीजे तक पहुंचे कि इसमें क्या एप्टीट्यूड है या इंटेलिजेंस का लेवल क्या है या इसकी पर्सनालिटी टाइप किस तरह से. अब उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है. अब यहाँ पर एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूँ और अगर आपकी तरफ से राइट रिस्पॉन्स नहीं आए तो फिर आई विल सप्लेंट. वैसे दो आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल गिव द राइट आंसर. किसी को ये बताना कि ये काम करो ये ज्यादा बेहतर है या उसके लिए ऐसे आसानियां पैदा कर देना कि वो खुद ब खुद डिसीजन ले ले कि ये मुझे करना है. व्हाट्स बेटर, फर्स्ट वन और द सेकंड वन? Second one. Second one. Yes, sir. Second one. Second one. Second one. But both the things are okay, and second one is better. Okay, why second one is better? I think, sir, a student will be more confident while taking the decision. Yes, scanning through the opportunities, he can take better decisions. Because Okay, of the any fact other that reason? because of the fact in the second option, the child is deciding on its own, considering into account all the parameters, and therefore, in the future, he or she will be more satisfied with the choice. Okay. In this case, the output will be better. Okay, 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 okay. सर चलिए उसको लगेगा ये उसका अपना डिसीजन ना, उसको फोर्स नहीं किया जा रहा, क्योंकि फोर्स डिसीजंस जो हैं वो सही नहीं रहते. Sir, the student knows his okay. weak and strong areas. ओके ओके ओके. आपके ग्रुप में इनफैक्ट मैं आप लोगों के नाम नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज बिफोर मी स्लाइड इज ओपन. तो जरा ग्रुप में देख के बताइए, समीना मैम ने ज्वाइन किया है क्या, एबीके गर्ल्स की प्रिंसिपल? Yes, sir. Join किया. समीना मैम, आर यू देयर? Right here. Assalamu alaikum. जी आई एम हियर. या मैं बिल्कुल हूँ, पूरी तरह से कनेक्टेड थी. आई हैड हर्ड यू. तो बस मैंने जी आपकी परमिशन से एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैम, इफ यू परमिट मी. सर प्लीज डोंट डू दिस. You are the coordinator of this course. You have all the rights. Whatever you have to, please go through. Sure. Thank you, ma'am. Thank you for permitting me. अब एक परेशानी इनफैक्ट समीना मैम की आपके सामने मैं रख रहा हूँ. मुझे लगता है कि शायद किसी काम से मैं समीना मैम के पास गया था when she was in the chamber of the principal. तो मैंने पूछा उन साहब से जो बाहर बैठते हैं कि मैम के पास कोई बैठा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ साहब एक पेरेंट आए हैं, मतलब यानी फादर मदर बोथ हैव कम और काफी देर से हैं वो. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. मीनवाइल मैं बाकी जो टीचर्स हैं जैसे आसिफ साहब हैं और ये लोग हैं, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ. जब मैम फ्री हो जाएंगी तो आप मुझे बताइए. तो उसके बाद भी यानी ये कहने के बाद भी 15-20 मिनट तक वो लोग मैम से बातें करते रहे और फिर उसके बाद यानी आई गॉट द मैसेज कि अब वो फ्री हो गई. तो मैं पहुंचा मैम के पास.
तो दो आई मीन इट वाज नॉट माय मैटर, बट सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने पूछा कि मैम क्या बात थी आप क्या डिस्कशन चल रहा था इतना लंबा। तो उन्होंने कहा कि अरे वो मुझसे ये बहस कर रहे थे पेरेंट कि हमने अपने लड़के को अच्छा भेजा था आपके स्कूल में, आपने हमारे लड़के को खराब कर दिया। राइट समीना मैम, यही बात थी ना? समीना मैम? जी सर, जी जी। तो इसके बाद फिर हम लोग काफी हाँ, तो इसके बाद फिर हम लोग काफी हंसे इस पे कि देखो कैसे, मतलब कितना डेयरिंग है ये पेरेंट, कैसे यानी बेबाकी से कह रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा था, आपने जो खराब कर दिया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को ये कह दिया कि ये नहीं करो ये करो, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें फेल्योर रहा, तो ये बात जान लीजिए कि पूरी उम्र आप कोसी जाएंगी, पूरी उम्र कोसेगा वो आपको, ना कि वो सिर्फ, बल्कि उसके माँ बाप भी आपको कोसेंगे कि इट वाज यू रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर फ्लाइट। वहां पर किस्मत और फेट और डेस्टिनी ये सब बातें लोग भूल जाते हैं, और दे विल ऑलवेज ब्लेम फॉर यू बिकॉज टूडेज जनरेशन इज वेरी मच एग्रेसिव। तो मेरे ख्याल से आप खुद मत कहिए कि ये कर लो ये मत करो। आई मीन जिस तरफ आप उसको ले जाना चाहते हैं उसके लिए आसानियां पैदा करिए, उसको डायरेक्शंस दीजिए, और उसको हिंट दीजिए, आई मीन समथिंग लाइक दैट, बट लेट हिम और हर टेक द डिसीजन। और बिसाइड्स जो अभी आप लोगों ने मुझसे बात कही कि वो कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा, आई मीन ऑल दोस थिंग्स डेफिनेटली विल बी देयर, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लगता है वो यही लगता है कि आई मीन दे विल ब्लेम यू फॉर देयर फेलियर। तो बिल्कुल मत करिए ऐसा। Like to add here something. I Yes. would like to add here something. That the parents Sure, ma'am. basically that we are having are basically not providing that type of assistance which you are talking about. The strictness that we are presuming that they'll be extending to their wards, they are not doing it, and they are not realizing even. They are not even realizing that they are failing to do their duty. हाँ, वो सारा एक्सपेक्टेशन अपने टीचर्स से रखते हैं या सारा, यस यस। तो मैम इन दैट केस आल्सो और उसी की वजह से ज्यादातर योर रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस 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 यस। तो जी, तो अब जब काउंसलिंग का because of the lack of assistance आपका parental तो yeah जी जी आई मीन द टीचर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिचुएशन। तो बहरहाल we have to counsel them. We have to counsel the parents anyhow. जी श्योर। तो अब मैं बच्चे की काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहा था। तो पहली बात तो जो मैंने कही कि आप उसको बताइए मत, आई मीन गिव द हिंट सो दैट ही और शी में टेक द डिसीजन। उसके बाद सोटा एक बहुत पुराना तरीका है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस, और ये आमतौर पर मैनेजमेंट में और हर जगह ये पढ़ाया जाता है कि इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को जान सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्या है वो जान सकते हैं, और थ्रेट आपको थ्रेट को भी जान सकते हैं। आई मीन तो हिम और हर डू शॉर्ट एनालिसिस, तो सोटा भी हम कहते हैं। तो एक सोटा मारने वाला भी होता है, समीना मैम। जी गॉट इट। So I'm not talking about that SOTA. I mean I'm talking about this analysis. तो आप अगर YouTube पे देख लीजिए या Google पे देख लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके बयान किए गए हैं, या पर्टिकुलरली सम ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज, खासतौर से परवेज तालिब साहब वगैरह, इन लोग के लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस पर, सोटा पर कैसे करते हैं। तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू डू दैट। तो आपको अपने स्टूडेंट को ये कहना चाहिए कि तुम अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट को समझो। उसके बाद even I have a program, online program I did in COVID. उसमें भी SWOT analysis है, and that I keep sharing with my students, 9th class students, 9th and 10th class students, I keep sharing with them. Whenever they get time, they can go through that. Sure. So then let them analyze their strengths or weaknesses, या वो इन्हीं चारों पैमानों पर। बहुत ज्यादा यानी वो अगर बहुत बड़ा आप अपना होराइजन करेंगे तो दे विल गेट कंफ्यूज। तो इन्हीं चार चीजों पर सोटा उनको करने दीजिए, इंटरेस्ट पर, एप्टीट्यूड पर, इंटेलिजेंस पर और पर्सन।
अब उसके बाद उनके सामने कुछ ऑप्शंस और दीजिए या उनसे कहिए कि और लेट देम सर्च किस कॉलेज में कौन सा कोर्स और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फी वगैरह कितनी है, फी कितने इंस्टॉलमेंट में देनी है, और फी का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, आई मीन ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं समटाइम्स टू टेक द डिसीजन। और उसके बाद अल्टरनेट कोर्सेज क्या हो सकते हैं, एलाइड कोर्सेज क्या हो सकते हैं, उन कोर्सेज की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एंड ऑफ कोर्स देयर शुड ऑलवेज बी ए प्लान बी। अब आप सब लोग इसमें से, आप लोगों में से ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमको ये बात सिखाई जाती है कि प्लान ए फेल्स देन प्लान बी शुड बी रेडी। सो इवन मी, इफ यू सी, आई एम ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अलीगढ़, और किसी और साहब को ये सेशन लेना था। All of a sudden, fallout was there. I contacted so many people. I couldn't convince anyone to do the needful at such a short notice. So I'm not at the place where I am residing currently at Bhopal. So I was in the market. So somehow I contacted one of my students definitely and requested to provide me some Wi-Fi, to provide me some system, and so that I may do the needful. So I'm doing the needful. Definitely आपको एक plan B जरूर रखना चाहिए, so that if plan A fails, plan B might come. I mean, again there might be some question कि plan B भी फेल हो जाता है कभी की, तो बहरहाल वो तो होने को तो हो सकता है, लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज अगर एक प्लान फेल होता तो दूसरे में हम किसी न किसी तरीके से सिचुएशन जो है वो मैनेज कर लेते। एंड let them know their resources, particularly how much time they have, how much money they have. और फिर यहाँ पर जब टाइम की बात करता हूँ तो हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में खास तौर से टाइम का बहुत बड़ा मसला लड़कों के साथ नहीं होता है, लेकिन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पेरेंट्स वांट देम टू गेट मैरिड एट अर्ली एज। तो उसमें से कोई ऐसा टाइम टेकिंग कोर्स है जो लंबा खींच जाता है, लंबा टाइम लेता है, तो समहाउ फिर उसमें बहुत सारी दुश्वारियां लड़कियों के हवाले से आती हैं। तो बहर ये टाइम और मनी का जो इशू है, दैट इज आल्सो क्रूशियल। सो लेट देम नो एंड लेट देम एनालाइज की कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा खर्चेगा, और फिर लेट देम नो द स्कोप। यानी स्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सैलरी हो गई, पार्क्स, फैसिलिटीज़, बट बियॉन्ड दैट कि उसका जो है वो अपने पोटेंशियल को कैसे इन्हांस कर पाएगा, और ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दिस you will be able to guide your student to choose a right career. So it is 1:17 by my watch. So I think I have spoken for almost 75 years, 75 minutes in fact. So thank you very much for listening to me with patience. Definitely it was not my area, but with your cooperation, with your interaction, the session became live and engaging. So thank you very much once again. Now we can utilize 12 to 13 minutes in some questions, or if you have something to share with me, definitely. So I'm opening the house for the question. Thank you so much, sir. इसको ये share बंद कर देते हैं. Yes, please, if you have any question, please let me know. Assalamualaikum, sir. Yes, ma'am. Can you see me, ma'am? No, I can't see. Yes, Okay, yes, sir. okay, We okay. can. Please tell. Please tell. अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपने जो है बहुत ही अच्छा सेशन दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया सर, कुछ पूछने की गुंजाइश बचती नहीं है सर, बहुत अच्छा आपने सर हर चीज बताई। ओके बिल्कुल सही कहा सबने कि पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। साजिद सर, सर, very एक चीज शेयर extensive करना and चाहती हूँ। comprehensive lecture. सर एक क्वेरी थी बस, मैंने आपका व्यू चाहिए था इस पे। सर नेपोटिज्म ना, सर नेपोटिज्म भी करियर में बहुत रोल रखता है। Like for example, if I have a shop, I would want somebody to sit in that. If I have a clinic, I would want a doctor. Okay, okay. ठीक है, मैं अभी अपना ओपिनियन देता हूँ। Meanwhile, someone wanted to share something. कौन थी साहिबा? Farhat ma'am from ABK Girls. Yes, Farhat. Please. Sir, years back I attended a workshop when I was teaching in St. Mary's School, Bijnor. There was a workshop related to teaching methods. उसमें जो resource person थे, he shared one very wonderful thing, और वो मैं आप लोगों के सबके सामने भी शेयर करना चाहती हूँ। He said कि one must prepare his own Johari window.
और ये जो हैरी विंडो होती है उसमें देयर आर 4 पार्ट्स। उसमें एक पार्ट ऐसा होता है दैट इज ओपन एरिया एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड एरिया। तो किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी का या किसी भी शख्स की पर्सनालिटी का एक जो ओपन एरिया होता है वो है जो सब लोग जानते हैं उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में। बट देयर आर सो मेनी हिडन थिंग्स इन हिज पर्सनालिटी दैट ही नोज हिमसेल्फ, जो वो खुद जानता है, दूसरे लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो एक्चुअली जो करियर डिसीजन होता है वो आफ्टर ऑल उसके उस क्लोज एरिया पे ज्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि वो अपने स्किल्स को और अपने एप्टीट्यूड को ज्यादा अच्छे से जानता है। और अक्सर जब वो अपना करियर चूज करता है तो वो दूसरों के सजेशंस को कम वैल्यू देते हुए अपनी स्किल्स को ज्यादा वैल्यू देता है, जो कि होना भी चाहिए। और आपने जो पूरा का पूरा जो सेशन दिया है उसके अंदर जो summary of the session is that कि one person, any person should try to understand himself कि उसके potential hidden potentials कौन से हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स उसको मिल सकते हैं कि जहां से वो अपने उन स्किल्स को, अपने पोटेंशियल्स को दूसरों तक पहुंचा सकता है। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो फरहत मैम आपने जो बात कही तो वहीं से ज़ैनब मैम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर वहीं से निकलता है। So first let me supplement Farhat ma'am with a beautiful couplet. बहुत अच्छा है। फरहत मैम ने कहा कि एक इंसान के सारे रूप होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो निदा फाजली का एक शेर है, एक पूरी गजल है, इनफैक्ट उसका एक शेर है, बड़ा मीनिंगफुल है। और जब भी मैं पर्सनैलिटी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ। शेर ये है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना कई बार देखना। फरहत में माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। लेट मी रिपीट माशाल्लाह सर, बहुत ही उम्दा शेर है माशाल्लाह सर। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना कई बार देखना। तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनैलिटी का ऊपर का हिस्सा हमको दिखता है कि हमने कपड़े क्या पहन रखे हैं, हम बातें किस तरीके से कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट रियली आई थिंक माय एटीट्यूड, आई मीन ऑल दोस थिंग्स वो हिडन है। और अगर आप लोग याद कीजिए तो एक बहुत बड़े शायर हैं इंग्लिश के विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लॉन्ग बैक कहा था कि मैन इज लाइक ए शिप, हाफ एबव द वाटर हाफ बिलो द वाटर। तो पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो अंदर छिपा हुआ है, हाफ बिलो द वाटर, तो वो इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है उसको एसेस कर पाना। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंसर्न अबाउट द अबव द वाटर। तो बहरहाल पोटेंशियल तो इंसान के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। अब ज़ैनब मैम का जो क्वेश्चन था, तो मैं एक अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर करता हूँ। आई एम क्वाइट श्योर कि ज़ैनब मैम विल गेट व्हाट शी वांटेड टू नो फ्रॉम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes, sir. Yes, क्या आप मुझसे, आपने मेरे 2 सेशन सुने, पहले दिन भी सुना मुझको, आज भी सुना, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो और बार भी मुझे सुन चुके हैं। डू यू थिंक आई एम ए गुड टीचर? Yes, sir. You are a very good teacher. Definitely, sir. Yes, sir. Sir, you are a good teacher. Yes, sir. Of course, You are a definitely good you are a good teacher, sir. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं टीचर बनूं, प्लीज बिलीव अल्लाह। मैंने जब बीएड किया था तो मैंने साल भर बताया ही नहीं था अब्बा को कि मैं बीएड कर रहा हूं। आप यकीन मानिए, वो इतने सख्त मिजाज के इंसान थे, वो मुझे घर से निकाल सकते थे और न्यूज़पेपर में नोटिस दे सकते थे कि साजिद जमाल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। he wanted me to be an IAS ऑफिसर। और यकीन मानिए कि टीचर्स को ऐसे हिकारत की निगाह से वो देखते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और कितने पापड़ बेल करके, कैसे कैसी मगजमारियां करके मैंने बीएड किया, छिपा करके उनसे छिपा करके मैंने एमएड किया। वो बार बार मुझसे पूछते थे कि यूपीएससी का फॉर्म भरे कि नहीं भरे, तो मैं झूठ बोलता था उनसे कि हाँ भरा, मैं टेस्ट में अपियर हुआ, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। यानी वो 3-4 साल मेरी लाइफ के कितने मुश्किल थे। एंड अल्टीमेटली व्हेन आई ज्वाइंड द कॉलेज एट ए वेरी यंग एज, देन विथ लॉट ऑफ फियर, इनफैक्ट आई डिस्कस द मैटर विथ माय मदर। और मदर ने कहा कि नहीं, अब तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो अपने अब्बा को बता दो, कोई बात नहीं, अगर नाराज होंगे तो होंगे, कोई बात नहीं, अपने अब तो तुमने ज्वाइन कर लिया। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने
बहुत मशक्कत से उनसे कहा और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि ठीक, अच्छा चलो, तुम्हारी बात रख लिया मैंने, तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन बेटा कॉलेज तुम्हारा आखिरी हदफ नहीं होना चाहिए, वहां से कोशिश करो कि IAS हो जाओ, पीस हो, यहाँ तक कहते थे कि BDO बन जाओ, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, तहसीलदार बन जाओ, आई मीन समथिंग लाइक दैट, बट बन जाओ। दिस टीचिंग प्रोफेशन, हाँ, कुछ भी मतलब ये कि वो टीचिंग बेकार है, ऐसा मुझसे कहते थे। तो आपको लगता है कि अगर मैं किसी और प्रोफेशन में गया होता तो मैं उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पाता, या वाइस वर्सा, अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं आता तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छा टीचर इस प्रोफेशन में नहीं आ पाता? डू यू एग्री? आप एक बहुत अच्छे जो है टीचर, बहुत Sir, teaching suits you best because you can reach out to everyone. You knew your aptitude with that closed area of your personality. और फरहत मैम, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी मुझे मिले, हरी बत्ती लगी हुई गाड़ियां मुझे मिले, मेरे पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो, जब मैं जाऊं तो लोग मेरी शान में उठ के खड़े, कभी नहीं। बस ओनली थिंग दैट आई वांट कि जब मैं क्लासरूम में जाऊं तो 40-45 मिनट 50 मिनट में कुछ फ्रूटफुल डिलीवर करूं, उसके बदले में मेरे स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो चमक आती है वो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन देती है, इतना खुशी देती है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूं कि व्हाट आई गेट। तो इनफैक्ट जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर एप्टीट्यूड है, अगर हम उसको पहचान करके उसकी तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे तो समहाउ वी विल बी हैप्पी, वी विल बी मोर प्रोडक्टिव, वी विल बी मोर कंट्रीब्यूटिव। और यही बात यहां से फिर समीना मैम की बात फिर निकल करके आती है कि समीना मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं से हमको पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली खासतौर से वो पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है, या जिनको बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में जानकारी नहीं है, उनको ये कन्विंस करना कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ये एप्टीट्यूड है और ये यहाँ पर अच्छा कर सकता है, आई थिंक दैट इज मच मोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के सेशन की कुछ भी बात आपको समझ में आई हो या आपके काम आई हो, तो मुझे लगेगा कि वट एवर द हार्ड वर्क आई हैव डन दैट विल बी फ्रूटफुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इसके अलावा भी अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो अगर आप कोई Thank you so much. पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर, बहुत ही जो है आपने लेक्चर को अरेंज किया और मुझे आपसे एक बात कहनी है जी। सर मैं एक बात कहना चाह रही थी। साजिद सर, आपने कहा ना कि पढ़े लिखे जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है हमें उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, बट सर मैं ये ऐड करूंगी कि पढ़े लिखे पेरेंट्स भी सर फोर्सफुली अपने बच्चों को साइंस स्ट्रीम दिलवा रहे हैं और वो ये ही देख रहे हैं कि उनका एप्टीट्यूड नहीं है सर फिजिक्स पढ़ने का या मैथ्स पढ़ने का। सर मैं नुदरत अहमदी स्कूल से, लेकिन ये चीज देख रही हूँ सर, बहुत ज्यादा इधर मैं देख रही हूँ सर, क्योंकि मैं एसएफएस की क्लासेस लेती हूँ सर, मेजॉरिटी उसमें बच्चा ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है सर, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं कर पाता है, क्वेश्चन मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स से वो पास आउट हो रहा है, बट पेरेंट्स से जब आप बात करी तो वही कहते हैं कि अरे मैम कर लेगा, कोई बात नहीं आप भी रुक जाइए, 2-4 साल ड्रॉप करके वो कर लेगा। सब उनका पूरा मतलब मैं ये कहूँ कि उनकी सब पूरी उनकी कैरियर उनकी पर्सनालिटी सब डैमेज हो रही है सर उसकी वजह से। सर मैं डॉक्टर सबा एबी के गए एक चीज मैं और ऐड करना चाह रही हूँ कि नाउ डेज द स्टूडेंट्स ओनली लाइक दोज टीचर्स हु गिव गुड मार्क्स। आजकल का जो ट्रेंड है ना वो मार्क्स पे ज्यादा डिपेंड हो गया है। इफ अ टीचर इज टीचिंग वेरी नाइसली वो कहेंगे तो कि द टीचर इज गुड, लेकिन अगर टीचर ने कहीं मार्क्स में उनके गड़बड़ी कर दी तो, और जो टीचर मैंने ये भी देखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो टीचर्स बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, वेरी लीनियंट, दे आर द लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स, और जो जरा स्ट्रिक्ट होते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छा है वो स्टूडेंट्स उन लोगों को कम पसंद करते हैं। मतलब दिस इज अ ट्रेंड, गेटिंग गुड मार्क्स इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी टीचर को रिकॉग्नाइज करते हैं जो पढ़ाता अच्छे से है। सर ये बात Exactly, sir. True. तो ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के गेन है कि बच्चों की वाहवाही हासिल करने के लिए या किसी और वजह से हम उनके लिए आसानियां पैदा करें, लेकिन हम बेसिकली उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा तब होगा जब हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी, अच्छी होगी, हम उनको गाइड कर पाएंगे, अच्छे मशवरा दे पाएंगे, तो दे विल रिमेंबर फॉरएवर। आई डोंट डेफिनेटली थैंक यू सर। साजिद सर एक प्लेटफॉर्म से एक सजेशन मैं देना चाह रही हूँ। आई एम सादिया खातून जैदी फ्रॉम सैयद हामिद।
कि एक रेगुलर बेसिस पर एक स्कूल्स के लिए कंटिन्यूअल काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑल थ्रू द ईयर अरेंज करते रहें, जिनमें कुछ कुछ बच्चे और पेरेंट्स सबको इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को कम से कम यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के और यूनिवर्सिटी के अचीवर बच्चों से उनका इंटरेक्शन, ये सब चीजें अगर होती रहे तो वो देयर होराइजन्स विल बी वाइड, दे विल बी नोइंग व्हाट डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू देम, and even as teachers we will be involved in this thing then. Thank you, sir. Sure. So this is very nice suggestion, ma'am. I can recommend it to your directorate. Definitely they have to organize the program. If they will instruct us to do the needful, definitely we will do the needful. Even if they will instruct us to start a program from tomorrow, we will do it from tomorrow. We have all the resources. I mean, there's no issue at our end. But definitely the decision is to be taken by the directorate. तो मैं ये recommend कर सकता हूँ, अगर वो कहेंगे तो ऐसा program करवा सकते हैं. And I think I do agree that such type of program is required. Sadia ma'am. Assalamualaikum Sajid sir, this is Sabha from Senior Secondary School Girls. सर क्योंकि आज का प्रोग्राम करियर काउंसलिंग का था तो इसलिए मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है. आई नो कि इस टाइम नहीं करना चाहिए, बट सर इट्स अबाउट माय सन. ही इज हैविंग हियरिंग हार्ट प्रॉब्लम, हेयरिंग इश्यूज है उसको, और ही इज डूइंग 11 ना. इस बार 11th में आए हैं वो सर, तो मैं क्योंकि उनको ह्यूमैनिटी में वो बिल्कुल कंफर्टेबल थे तो उनको ह्यूमैनिटी का ही टेस्ट दिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी कर गए. सर सिर्फ ये पूछना था क्योंकि अभी एडमिशन में टाइम है, तो सर क्या हमारे यहाँ एएमयू में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं एक काउंसलिंग उनकी मतलब करियर काउंसलिंग करूँ कि किस सब्जेक्ट्स में ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्या ये हो सकता है सर? पॉसिबल? सबा मैम आपके पास मेरा नंबर है? नो सर, राइट नाउ नहीं सर. You note it please. नोट कर रही हैं मैम? जी सर प्लीज. 78724 78724 जी सर. 88 जी सर. 500. जी थैंक यू सो मच सर. जी सर. आप इस नंबर पर मैम 19 या उसके बाद कभी भी कॉल कर लीजिएगा. एंड प्लीज डोंट कॉल मी आफ्टर 9 PM क्योंकि मैं सो जाता हूँ मैम. ओके श्योर सर, आई विल टेक केयर. तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट कैन बी डन. राइट मैम? सबा मैम थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू. थैंक यू. और किसी को कुछ कहना है और आई शुड से गुड बाय टू यू पीपल? Oh, sir. Assalamu alaikum. Allah Hafiz, sir. Please take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Good interaction. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Very informative session. It's really great. And all. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Allah Hafiz, Nudat ma'am. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, walaikum assalam, assalamu alaikum.